پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے بہت ساری گفتگو الفاظ کے سہارے سے کی ہے. تو میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. میں اب ہمارے شہر کے ایک ذیل شخصیت جن کے ہر سنڈے کو چیران پیلس کی مسجد میں بعد نماز فجر تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، عربی کے استاد ہیں. میں محترم پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں. پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن يدبر آياته جناب مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سید محمود صاحب، ارشادات قرآنی کے مصنف جناب انعام الحق صاحب، دائز پر موجود تمام علماء اکابر مشاہیر اور محترم سامعین، بہت مختصر جناب انعام الحق صاحب کی اس کوشش، اس کاوش کو سراہتے ہوئے، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کا یہ بیڑا اٹھایا. اور اس خصوص میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن مجید جس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حبل اللہ المتین، وہ ذکر اللہ الحکیم، وہ صراط المستقیم، کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ صراط مستقیم ہے. یہ تینوں جملے عکاسی کرتے ہیں قرآن مجید کی جو حقیقت ہے اس کی، کہ قرآن مجید ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں ہیں، وہ ہمارے لیے نماز ہے، وہ ہمارے لیے عبادت ہے، اس کی تلاوت باعث اجر ہے، اس میں انہماک مطلوب ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک مضبوط اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کی وجہ سے امت اللہ تعالیٰ سے بھی جڑتی ہے، انسانیت اپنے معبود سے جڑتی ہے، اور انسانیت خود بنی نوع انسان کے دیگر افراد سے جوڑتے ہیں. پھر یہ صراط مستقیم ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے. قرآن مجید کی چند موتیوں کو چن کر ابھی ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید ظفر صاحب نے بحسن و خوبی جس انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے آپ کو صاف اندازہ ہو گیا کہ قرآن مجید دراصل عقل و دانش کا سرچشمہ ہے، حکمت کا خزانہ ہے، اور اس سے جڑنے سے بلکہ اسی سے جڑے رہنے سے انسان کے اندر وہ دانشوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر بصیرت، بینائی اور دانائی پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو نافع بناتی ہے، انسان کو مقبول بناتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے انعام الحق صاحب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو خدمت ہوتی ہے، لازمی بات ہے اس کی تین ترتیب ہے، اس کے تین مرحلے ہیں. ایک تو یہی کہ تذکیر قرآن
मुसलमान कुरान मजीद से आप नसीहत हासिल करें। लाजमी बात है, इसमें मुसलमान ही नहीं हर इंसान को दावत दी गई है कि वो कुरान मजीद से नसीहत हासिल करे। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर फरमाया कि देखो हमने कुरान मजीद को नसीहत। जलालैन लिखी गई तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, इमाम जलालुद्दीन महल्ली ने जैसे मेहनत करके एक किताब अब हमारे और आपके लिए एक ज़ख़ीरे आखिरत बनाकर छोड़ा, उससे अब हमने इस्तिफ़ादा किया, उसकी रोशनी में हमने अपनी फिक्र को जिला दी। तो अब ये जो हासिल है, इस हासिल को दूसरों तक पहुंचाना, अपने बच्चों तक पहुंचाना, अपने कुंबे तक पहुंचाना, अपने कोलिग्स तक पहुंचाना, अपने साथियों तक पहुंचाना, ये है तबलीग किताब, जिसका हुक्म हमको दिया गया है और जिसका हर मुसलमान मुकल्लफ है, और जिसके लिए मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कोट किया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी तुम समझ कर पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ। लेकिन लाजमी बात है, इसमें सबसे पहले समझना है, सीखना है और उसके बाद फिर उसको पहुंचाना है। तीसरा एक और मरहला है, तज़किरे किताब के बाद, तबलीग किताब के बाद तबयीन किताब का मरहला है। वो बहुत ही यानी नाजुक मरहला होता है। तबयीन किताब की जिम्मेदारी खुद नबी और रसूल पर थी। इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लितुबय्यिना मा नुज़्ज़िला इलैक, कि जो चीज़ हमने नाज़िल कर दी है नबी, आपकी जिम्मेदारी है आप उसकी तफसीर करें, आप उसकी वजाहत करें। और अभी मैंने इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया, उन्हीं की किताब है अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरआन, उसमें उन्होंने 19 उलूम ऐसे लिखे हैं जिनसे इंसान जब एक मुसलमान जब बखूबी वाकिफ हो जाए और उस पर उमूर हासिल कर ले तो वो तफसीर कर सकता है। उसके अंदर फिर ये सलाहियत पैदा होती है कि वो तावील का, तफसीर का फरीज़ा अंजाम दे। ये तबयीन किताब ये एक अहम ड्यूटी है, ये एक अहम जिम्मेदारी है और हर एक के बस की बात नहीं। इसके लिए तो सबसे पहले पूरा का पूरा कुरान मजीद समझना जरूरी है और मुकम्मल कुरान मजीद समझने के बाद इस कुरान पाक को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे समझाया ये समझना जरूरी है। और फिर तीसरे मरहले में इस कुरान पाक को सहाबा ने कैसे समझा ये समझना जरूरी है। और ये सब समझने के लिए आप जानते हैं कि अरबी से वाक़ियत अज़हर जरूरी है, बगैर अरबी की वाक़ियत के आप ये सारी चीजें नहीं समझ सकते। तो तबयीन किताब ये तो इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लअलिमहुल लज़ीना यस्तंबितूनहु मिन, कि जिसके अंदर इस्तिंबात की सलाहियत होती है वो ये फरीज़ा अंजाम दे सकता है। हर एक के बस की ये बात नहीं हो सकती, लेकिन हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि तबलीग किताब की, कि हम अल्लाह ताला की इस किताब और अल्लाह ताला की किताब का जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मफहूम ये नहीं कि आयतें पढ़ाकर हुज्जत पूरी कर दे, आयत सुनाकर हुज्जत पूरी कर दे, नहीं। जैसे अभी तह में जा रहे थे डॉक्टर साहब और आयतों के सिलसिले में इशारा कर रहे थे कि मदलूल क्या है, मफहूम क्या है, उसका आमद क्या है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, ये अमल अगर हमारी जिंदगी में एक सामने वाला मुशाहिदा करेगा तो ये न सिर्फ एक तबलीग आयत है बल्कि आपने हुज्जत पूरी कर दी कि किस तरह बिर ये इस पर अमल किया जा सकता है, बिर को अपनी जिंदगी में अपनाया जा सकता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस मौके पर जबकि दानिश्वरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी है, मैं गुलाम मोहम्मद साहब का इनामुल हक साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए मैं ये चाहूँगा कि हम सब अल्लाह ताला की किताब से वाबस्ता होने का अहद कर लें और इस वाबस्तगी की पहली सीढ़ी, पहला जीना, हम खुद किताब को सीखें, उसकी तिलावत को सीखें, उसके मानों को समझना सीखें, उस पर अमल करना सीखें और फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि जो चीज़ें हमको मिली हैं वो दूसरों तक पहुँचाएं। और फिर इसके बाद से इंशाअल्लाह ये जो तबयीन किताब की जिम्मेदारी अहलुल्लाह अंजाम दे रहे हैं, मुफस्सिरीन अंजाम दे रहे हैं, वो भी कमा मफ़हूम निखर कर सारी उम्मत के सामने आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी किताब से वाबस्तगी, उससे मोहब्बत और उससे ताल्लुक़ अता करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त की तंगी की वजह से प्रोफेसर राशिद नसीम साहब ने अपनी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर की और उनके बयान का लबा यही है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हमारे मेहमान जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और जामे हमदर्द में इस्लामिक स्टडीज़
کے استاد ہیں. میری مراد پروفیسر اشتیاق دانش صاحب سے ہے, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہمدرد یونیورسٹی سے. میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں. پروفیسر اشتیاق دانش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر چیئرمین, جناب مصنف کتاب جناب انعام الحق صاحب, ڈائز پہ بیٹھے ہوئے دوسرے ڈگری. I had prepared myself to express my ideas in English, but I see that most of the people, rather almost all of them, are well versed in Urdu, so rather I would like to express myself in Urdu. Because I think that the best thing about the Holy Quran is that it was given first to the people in their own language. This is the basic, as far as methodology is concerned, this is the basic feature of the Holy Quran. That the book was revealed to the people in their own language so that they can understand it. This is the best thing about any communication. So I should rather confine myself to be speaking in Urdu so that the people may understand. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا اس پروگرام کے آرگنائزر کو, اور خاص طور سے جناب انعام الحق صاحب کو اور ان کے ساتھ محمد صاحب کو, جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہاں بلایا اور میں اپنے خیالات کا ایک ایسے موضوع پہ کر سکوں جو دنیا میں غالباً سب سے اچھا موضوع ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے کتاب کے بارے میں گفتگو کرنا. آپ میں سے شاید بعض لوگوں کی نظر سے وہ حدیث گزری ہو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ افراد کے دو گروپ ہیں جو کسی کام میں مشغول ہیں, اور ان پہ یہ انکشاف ہوا کہ ایک گروپ ان میں سے قرآن مجید پہ غور و فکر کر رہا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے ذکر الہی میں مصروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح اس بات کو دی کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے جو قرآن مجید پہ غور و فکر کر رہے تھے. مقصود اس حدیث کے یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ذکر الہی اتنا مطلوب نہیں ہے جتنا قرآن مجید پہ غور و فکر ہے, بلکہ غالباً انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ذکر کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور فکر سے ذرا جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بہت ساری چیزوں کو وہ جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے ہیں, تو وہ فکر کی قرآن مجید میں غور و فکر کو اہمیت کو زیادہ اجاگر کرنا چاہتے تھے, اس لیے اس گروپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. میرے خیال میں مجھے جو چیز نظر آتی ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, وہ ایک طرح سے ذکر نہیں کر رہے ہوتے, وہ خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے, اس میں وہ چیز شامل ہے. بہرحال جو بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا اس کی تفسیر لکھتا ہے وہ ایک خاص مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے, اور وہی مقصد جو ہے قرآن مجید جو تفسیر کے پیچھے جو فرما ہوتا ہے وہی آدمی کو جو ہے مجبور کرتا ہے کہ وہ کس انداز سے اس کو جو ہے پیش کرے. ظاہر ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو جو ہے جو یہ قرآن کتاب جو ریلیز کی گئی ہے جناب انعام الحق صاحب کی, اس میں کیا کیا چیزیں میں نے پایا ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں. میرا تعلق جو ہے مشرقی یوپی کے ایک چھوٹے سے شہر آدم گڑھ سے ہے جو آج کل اخباروں میں بڑا بدنام ہے دہشت گردی کے حوالے سے, لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ شہر جو ہے علم کا گہوارہ رہا ہے, چھوٹا سا شہر ہے, اور آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے علامہ شبلی کا نام نہ سنا ہو. آج کل اگر دہشت گردی کے علاوہ کوئی اگر اس شہر کو یاد کرتا ہے تو شبانہ احتیاطی کے حوالے سے کرتا ہے, فلموں سے وہ لوگوں کو دلچسپی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ شہر مشہور جو ہے اہل علم کی وجہ سے ہے. جونپور اور آدم یہ ہمیشہ جو ہے تاریخی طور پر جو ہے کہ ہمارے علم رہا ہے. وہیں کی ایک شخصیت کا بڑا گہرا تعلق آپ کے حیدرآباد سے بھی رہا, علامہ شبلی کا بھی رہا ہے, اور ایک علامہ حضرت الدین فلاحی ہوتے تھے ان کا بھی حیدرآباد سے بڑا گہرا تعلق تھا. وہ یہاں نظام کے یہاں نوکری کر رہے تھے, اور یہی ان کو بعض اورینٹلسٹ کی کتابیں ملی جن کو پڑھنے سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ کافی ذہین انسان تھے. جب یہ علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے گئے تو علامہ شبلی کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے. علامہ شبلی نے ان کو خط دیا کہ جا کے سر سید علیہ رحمہ کو دے دینا, اور جب وہ سر ٹامس آرنالڈ کو دے دینا, اور انہوں نے سر ٹامس آرنالڈ اور سر سید میں چپکلش بھی تھی اور دونوں میں دوستی بھی تھی, دونوں
मोहम्मद नेहरू ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ा रहे थे, सर सैयद खान रजा कॉलेज में, और उसमें इन्होंने लिखा था कि मैं आपके पास एक ऐसे शख्स को भेज रहा हूँ जिसकी अरबी दानी जो है इस कदर वो है कि आपके कोई असातिज़ा से अपनी अरबी नहीं जानता, और इसकी अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर है, इसलिए मैं आपके पास इसको भेज रहा हूँ कि आगे अंग्रेजी बहुत सीखा, इसकी अरबी और फारसी आपके असातिज़ा से कहीं ज़्यादा ही नहीं जानता। तो वो शिकायतन जो है वो सर सैयद के यहाँ गए, सर थॉमस आर्नल्ड, कि भाई ये क्या है, देखिए शिबली साहब क्या लिख रहे हैं। तो सर सैयद बहुत खुश हुए कि चलो मेरी कौम में कोई ऐसा तो है जिसकी अरबी और फारसी दानी जो है अंग्रेज उस्तादों से भी ज़्यादा है। पर उनका जो ताल्लुक है, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है, जब उन्होंने हैदराबाद में बाल ओरिएंटलिस्ट की किताबें पढ़ी जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि कुरान मजीद नौज़ुबिल्लाह एक ऐसी किताब है जो इनकोहेरेंट है, अनसिस्टमेटिक है, जिसमें कोई नज़्म वगैरह नहीं है, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने सोचा कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ में नज़्म है, उसकी किताब में नज़्म कैसे नहीं, बस ये सवाल है। फिर उसके बाद उन्होंने हैदराबाद की बड़ी लुक्रेटिव जॉब जो थी उन्होंने छोड़ दिया, और वो आजमगढ़ के छोटा सा कस्बा है, गाँव है सराय में, वहाँ पहुँच गए और एक छोटा सा मदरसा था, उस मदरसे में बैठ के 40 साल तक कुरान मजीद पर गौर फिक्र किया, और उसके बाद से जो तफसीर उन्होंने निकला शुरू किया, जिसका नाम ही उन्होंने रखा निज़ामुल कुरान, जिसे नज़्म कुरान नाम कह सकते हैं। और उन्होंने ये साबित किया उसमें कि कुरान मजीद की हर आयत में, हर आयत का दूसरी आयत से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, इसी तरह से हर सूरह का दूसरी सूरह से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से उन्होंने ये भी देखा है कि सूरतों के भी ग्रुप हैं और उनमें बड़े गहरे जो है थेमेटिक जो है लिंक्स हैं, ऐसा नहीं है कि अनसिस्टमेटिक और इनकोहेरेंट जबान है। वो अपने तफसीर मुकम्मल नहीं कर सके, उनके बड़े शागिर्द खास थे जो पाकिस्तान चले गए थे, मौलाना अमीन हसन इस्लाई साहब, और उन्होंने तदब्बुर कुरान के नाम से उन्हीं के मनहज पे जो ये तफसीर लिखी। तो मैं ये कहना चाहता था कि आदमी का जो मकसद होता है वो जो है उसको मोटिवेट करना है कि वो किस अंदाज में तफसीर लिखी है। बिल्कुल यही चीज़ जो है मुझे जनाब इनामुल हक साहब के इस किताब में भी नजर आई। आमतौर से आपने देखा होगा तमाम लोगों ने तफसीरें इस तरह से लिखी हैं कि आयत बाय हर आयत की जो है कोट करते हैं, तो उसमें जो भी उनके ख्याल जो उनके फार्म और सोच होती है वो लिखते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की, ये कुरान मजीद की आयत आयत तफसीर नहीं है, बल्कि इन्होंने कुछ रुकू को ले लिया है और उसमें ये देखा है कि कौन कौन से मेजर मज़ामीन हैं, अहम मज़ामीन हैं जिन रुकू में बयान किए गए हैं, और उसको उन्होंने बयान कर दिया है। जाहिर है उन्होंने एक सामे को अपने सामने रखा है। जैसे बहुत सारी तफसीरें हमारे यहाँ लिखी गई हैं, मुफ्ती शफी साहब की जो तफसीर है मुबारकुल कुरान, वो फ़िक़ही नुक़्ते नज़र लिखी गई है। किसी ने हवाला दिया मौलाना मौदूदी की तफसीरुल कुरान का, वो 1930s और 40s में जब अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया पे ग़लबा था, सूरज उनकी सल्तनत में नहीं डूबता था, और हमारे नौजवान जो स्पेशली कॉलेजेस में जा रहे थे, उनकी लिखी हुई ओरिएंटलिस्ट की लिखी हुई तारीख से कुरान मजीद की तारीख हो या हमारी इस्लामी तारीख हो, उससे मुतासिर हो के बाद गलत ख्यालात जो है अपने अंदर जो दाखिल कर रहे थे, उसको सामने रखा है। इस वजह से उनकी तफसीर में हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद की वो है, उन खसूसियात को हाईलाइट किया कि उनके लिए ज़रूरी थी, यानी अपने दीन पर फख्र कर सके, दावत जो है लोगों के सामने पेश करके। इसी तरह से और भी तफसीरें जो है उनके कुछ खास खास मकासद है जिनके सामने रख के लोगों ने लिखा है। जनाब इनामुल हक साहब जैसा कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि उन्होंने आज के नौजवानों को देखा कि वो मुख्तलिफ कारोबार में लगे हुए हैं, जदीद तालीम हासिल किया है, और उनकी ज़िंदगी यूँ है कि सुबह से शाम जो है वो अपने काम में लगे रहते हैं, फिर थके हारे आते हैं, तो ज़ाहिर है हर एक को फैमिली चलाना है इसमें, और फिर प्रोफेशनल ज़िंदगी ऐसी होती है कि घर पे भी वो कुछ काम लेके आता है। अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उसे जो है न सिर्फ जो है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है, बल्कि बाकी औकात में भी कुछ वक्त निकाल के जो है कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ अपनी स्किल को शार्प करना है ताकि वो अपनी कैरियर में आगे बढ़ सके। ऐसे बिजी लोगों के लिए चाहिए है कि 6 वैल्यूम, 8 वैल्यूम, 10 वैल्यूम में लिखे हुए तफसीर कुरान को पढ़ना ज़रा मुश्किल होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना उनके सामने एक ऐसी मुख्तसर किताब रखी जाए, और जाहिर है वो किताब मुख्तसर इसी शक्ल में हो सकती थी कि बजाय आयत बायत कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमानी करने के रुकू को सामने रखे कि इन रुकू में ये मेजर बातें हैं। तो ये इस किताब में मुझे बड़ी अहम चीज़ नजर आई कि एक तो मकसद मुतय्यन किया, मकसद जो है आज के जो हमारे मसरूफ नौजवान हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, कैरियरिस्ट हैं, उनको सामने रख के और उनके जो वक्त मिल सकता है उसको सामने रख के उन्होंने इस तरह की जो है एक
तफसील लिखी और इसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक चीज़ जो और है कुरान मजीद में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे ताल्लुक आए हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कुछ भी लिखा जाए कम बढ़ जाएगा। हमेशा जो है इंसान का ध्यान, अगर ईमान है आपका तो हालात बदलते रहेंगे और उसके मुताबिक मुसलमानों के जहन जो है कुरान मजीद को अपने हालात पे अप्लाई करने के लिए सोचते रहेंगे और तफसीलें लिखते रहेंगे। तफसील की ज़रूरत ही इसी वजह से पड़ती है कि हालात और ज़माने बदलते रहते हैं और हालात और ज़माने के बदलने के साथ साथ जो है कुरान मजीद से हर वक्त हम हिदायत हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से उसे नए अंदाज से जो समझने की कोशिश करते हैं, नई ज़बान में नए इडियम से पेश करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसमें मेन चीज़ जो होती है नीयत की पाकीज़गी। नीयत जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जब नीयत पाक होती है तो उससे जो है नीयत साफ हो तो आपके ख्यालात में और आपकी ज़बान में भी जो है साफी और पाकी नज़र आती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ये प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एक्चुअली लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। जब आपके जहन में आपके अफकार और ख्यालात बहुत वाज़ह होते हैं तो आप उसे बहुत ही वाज़ह और साफ सुथरी ज़बान में लोगों के सामने पेश करते हैं। ये चीज़ जो है मुझे इस किताब में भी नज़र आई। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, यहाँ से निकलती है और आपके दिमाग तक पहुँच जाती है। दिस इज रियली समथिंग वेरी अमेजिंग। बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट उनके ख्यालात में उलझाव होता है, ज़रूरत होती है और क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं वो नहीं होती है। यही वजह है कि उनकी ज़बान भी बड़ी साफ सुथरी नहीं होती है। कम्युनिकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इकबाल ने भी कहा, दूसरे शायरों ने कहा, एक दिल से निकले और दूसरे दिल में जो है जाके बस जाए। तो वो चीज़ इस किताब में जो है मुझे नजर आई। एक और बड़ी खूबी जो इस किताब में मुझे नजर आई कि बहुत सारे आयतें हैं, खुद अल्लाह ताला का इरशाद है इस किताब के बारे में, इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। तो वो गुमराह करने वाली बातें पहले लोगों ने बहुत सारी उस पर लिखा है कि इसमें बात चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप अपने दिमाग के थोड़ी सी अपने जो राइट जगह है, राइट मेथडोलॉजी उसे हटा दें तो गुमराह होने के पूरे चांसेस होते हैं। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, अल्लाह ताला किसने पैदा किया, अब इस तरह के सवाल अगर आप करने लगेंगे तो गुमराह होने के पूरे चांसेस होते हैं। इब्न सीना, फाराबी, सभी लोग जो है ग्रीक फलसफे से मुतासिर होकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस चक्कर में पड़ गए कि जन्नत दोज़ख वाकई होगी, दुनिया होगी, किसी और दुनिया में वाक़ा होगी। अब इसका कुरान मजीद में जिक्र नहीं है और हमारी जो अभी तक जो जिसे कहते हैं हद इदराक है उससे मावरा चीज़ है। तो हद इदराक से जो मावरा चीज़ है उसके बारे में अगर गौर फिक्र करेंगे तो भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ सब्सिडी के यहाँ भी आई, उनकी तफसीर में भी चीज़ आई। वही इब्न सीना और फाराबी के यहाँ जो यूनानी फलसफे के ज़ेरे असर जो चीज़ें आई और बाद लोगों ने लिखा, गालिबन मौलाना अमीर हसन इस्लाही ने लिखा है कि इस्लाम को मंगोलों के हमले से उतना नुकसान नहीं पहुँचा है जितना हमारे सिलवे कलाम से पहुँचा है, जो इब्न सीना और फाराबी वगैरह के जरिए हम तक पहुँचा है। तो वो उसमें इसी तरह की बहसें हुई। पर इसमें मैंने ये देखा है इस किताब में कि इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं उनको अवॉइड किया और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कह रहे हैं कि नौजवानों के सामने, उन नौजवानों के सामने जो इंतहाई मसरूफ़ हैं, जो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं और वक्त भी जो निकाल पाते हैं तो किताब नहीं पढ़ते हैं, अपने लैपटॉप पे कुछ देखते हैं। बड़ा आसान तरीका है, बच्चों को होमवर्क दिया जाए तो दे इमीडिएटली गो टू द गूगल, कोई चीज़ तो मिल ही जाएगी, बना लेते हैं अपना प्रोजेक्ट और इस तरह से। तो ये अजीब व गरीब दुनिया है। इस दुनिया में जो है किताब लिखना, उसे शाया करना और लोगों तक पहुँचाना। और गालिबन में मेरा ये आखिरी मशवरा होगा कि अब इस तरह की किताबों को जो है हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जफर महमूद साहब कह रहे थे कि उस पर भी आना चाहिए, इसलिए कि वो आईपैड भी लेके बैठे हुए हैं। अब वो भी गालिबन किताब कम पढ़ते हैं और आईपैड पे जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो ये एक चीज़ अजीब व गरीब आ गई है कि अब किताब में जो है हम जो है लैपटॉप पे या आईपैड पे जो है पढ़ना पसंद करते हैं बनस्बत उस किताब को जो दो कवर के बीच में जो है छापी जाती रही, आज तक छपती रही। बहरहाल उसकी अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी अहम खसूसियत है इस किताब की जो अभी रिलीज़ की गई। इसमें कंट्रोवर्शियल इशूज़ से खुद को उन्होंने बचाया है और महकमात जो हैं, जिसको कुरान मजीद कहता है कि इनको पकड़ो और जो मुतशाबिहात हैं उनसे अपने आप को बचाओ और खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, उसको उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पेश किया है। इसका नतीजा निकला है कि ये जो ख़ास चीज़ें हैं जिनको जफर महमूद साहब ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट किया, जो हमारे अकायद हैं जैसे तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, हमारे मेजर अकायद हैं, इस तरह जो अरकान दीन हैं उन पर उन्होंने गुफ्तगू की है, उनको हाईलाइट किया है, उनको बड़े मुख्तसर अंदाज में बताया है ताकि
ताकि नौजवान उन्हें पढ़ें और आसानी से समझ सकें और उन पर अमल करें। इसी तरह से जो है हमारे समाजी ज़िंदगी है, हमारे मामलात हैं, फर्द और समाज के बीच में जो ताल्लुक होता है उसकी वजह से जो हमारे कुछ समाजी हुकूक होते हैं, कुछ आपके मेरे ऊपर हुकूक हैं, कुछ मेरे आपके ऊपर हुकूक हैं, पड़ोसियों के दूसरे हुकूक हैं, ये चीज़ें भी कुरान मजीद की इन आयतों को उन्होंने सेलेक्ट किया। मैंने बताया कि रुकू बाय रुकू इन्होंने तफसीर की है, लेकिन रुकू में से जो बहुत सारी आयतें होती हैं, एक दो आयतों को जो उन्होंने कोट किया है तो वो आयतें कोट किया है। अगर मान लीजिए कि 2 रुकू हैं या 3 रुकू उन्होंने सेलेक्ट किया है और वो रुकू जो है अकायद से बात करते हैं, तो अकायद में जो महकमात वाली आयत है उन्होंने लिया है और उसको उन्होंने बयान कर दिया है। इसी तरह से जो है बात रुकू ऐसे आए जहाँ समाजी ताल्लुकात की बात है, इंसान और इंसान के दरमियान मामलात की बात है, तो उन्होंने उन आयतों को जो है पकड़ा और उनकी तर्जुमानी किया है, तफसीर किया है, जो बेसिकली इंसान के अखलाक का और उससे मुताल्लिक है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, जैसे उसमें तकवा है, एहसान है, यहाँ तक कि गुड गवर्नेंस और सब चीज़ों के बारे में भी जो है उन्होंने इस किताब में आखिर में, क्योंकि वक्त बताने बहुत कम है और बचपन में 10-15 मिनट पहुँच चुका हूँ, तो एक आखिरी बात यह है कि हिंदुस्तान में ये रवायत बड़ी पुरानी है। देखिए दुनिया का जो नक्शा है कि अरब दुनिया है, अरबों का कुरान उनके अरबी ज़बान में आज भी मौजूद है और कुरान मजीद के ये एजाज़ है कि जो मॉडर्न अरबिक भी है वो भी अगर बदली नहीं, दुनिया का और ज़माने जो है, जैसे आप 600-7 साल पहले जो है, और वो भी बाद में छोड़िए, इंग्लिश ज़बान में जो है शेक्सपियर 300-350-400 साल पहले था। आज शेक्सपियर को अंग्रेज भी नहीं समझ पाते, अनलेस इट इज ट्रांसलिटरेटेड इन मॉडर्न इंग्लिश। इसी तरह से दुनिया के और ज़मानों का भी हाल है। जो हमारी उर्दू है, जो दक्कनी उर्दू है, हम सब जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये उर्दू समझने वाले दक्कनी उर्दू है, जहाँ हमारी उर्दू शुरू होती है, उसको कितने समझने वाले ऑडियंस में मौजूद है। शायद हमें उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अरबी तमाम कुरान मजीद की वजह से आज भी जो है थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसमें शक नहीं है, उसलों में मेहनत में सारी चीज़ों में, लेकिन मॉडर्न अरबी बोलने वाला भी कुरान मजीद को बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझता है। तो उनको ज़रूरत नहीं थी कुरान मजीद को दूसरे ज़मानों में मुंतकिल करने। पूरे दुनिया में जो क्रिश्चियन में थे, जो यहूदी भी थे अरब दुनिया में, वो भी अरबी बोलने लगे थे, तो कोई ऐसा नहीं था जिन तक पहुँचाने के लिए उन्हें कुरान मजीद को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करने की जरूरत। अफ्रीका में थी, लेकिन बहरहाल उन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि सवाहिली ज़बान और दूसरी ज़बानों में कुरान मजीद की तर्जुमानी और तफसीर उस तरह से करते जितनी हिंदुस्तान में उर्दू और फारसी में। यहाँ पे ये ज़रूरत महसूस थी, देखिए ज़रूरत इजाज़ की माँ है। यहाँ लोगों ने महसूस किया कि भाई हमारे उलमा हैं जो अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, जिसमें हमारा इल्मी वर्षा था, तफसीरें थी, लेकिन आवाम नहीं जानते, तो वो उर्दू बोलते थे। तो यहाँ ये एक बड़ा इश्तिहादी मसला था। फिर भी उलमा जो है बराबर वो थे कि ये क्या मुनासिब होगा कि हम जो है दूसरी ज़बान में कुरान मजीद की तर्जुमानी करें, क्या ये सही है, गलत है। बहरहाल शाह वलीउल्लाह ने एक इश्तिहादी ज़रूरत थी और उन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद का हिंदुस्तान के उन्होंने महसूस किया कि जो उमरा हैं वो फारसी बोलते हैं और वो कुरान मजीद नहीं जानते, और नतीजे के तौर पर इन हुक्मरानों से गलतियाँ सरदर्द होती हैं, जिससे इस्लाम और मुसलमान दोनों बदनाम होते हैं। इस वजह से उन्होंने महसूस किया कि कुरान मजीद का जो तर्जुमा जो फारसी में किया जाए, ताकि जो लोग फारसी जानते हैं, अरबी ज़बान नहीं जानते हैं, उससे जो है कुरान मजीद से बराह रास्त इस्तेमाल करते थे। उनके साहबजादे ने उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया और उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है कुरान मजीद की तफसीर का। और एक अजीब गरीब बात ये भी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लैंड से ज़्यादा पाए जाते हैं। इंग्लैंड में 4-5 करोड़ लोग पाए जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और यही से ये रवायत भी शुरू होनी चाहिए थी कि कुरान मजीद का जो तर्जुमा और उसकी तफसीर जो है अंग्रेजी ज़बान में मुंतकिल हो जाए। और ये इस मुल्क को ही ये फ़ख्र हासिल है कि जहाँ उर्दू में लिखी हुई तफसीरों का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया, वहीं ऐसे लोग भी यहाँ पहुँचे हुए जैसे मौलाना अब्दुल तरीबाती हैं, जिन्होंने बराह रास्त जो है अंग्रेजी में कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी। तो आखिर में मैं जनाब इनामुल हक साहब का शुक्रिया भी करता हूँ, और मैं तो बहुत ही छोटा हूँ कि उनको मुबारकबाद दूँ। तो मैं ये सादत हासिल करता हूँ कि इससे अपनी सादत समझता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया अपनी किताब के बारे में कुछ कहने का। इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। कुरान में हो बहुत अज़न ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जन्नत किरदार। अब हमारा जलसा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کے سارے شعر مکمل ہو گئے ہیں، ایک مقطع رہ گیا ہے، اور مقطع میں ظاہر ہے کہ صدر کو بالکل آخر میں مخاطب کرنا ہے، تو صدر